السلام علیکم اور ڈیجیٹل مسلم ورلڈ میں خوش آمدید۔ اس منفرد پروگرام میں ہم مسلم دنیا اور اس سے آگے کی دلچسپ خبریں اور رپورٹس لائیں گے، جیسا کہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا میں دیکھا جاتا ہے۔ ہماری پہلی کہانی قطر میں حال ہی میں منعقدہ فیفا ورلڈ کپ سے ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے کامیاب انعقاد پر قطر کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا۔ ورلڈ کپ کے دوران جس طرح قطر نے اپنی ثقافت اور اسلامی اقدار کا مظاہرہ کیا، یہ بھی حیرت انگیز تھا، لیکن مغربی میڈیا کے کچھ حلقوں نے اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قطر پر منفی رپورٹنگ کی اور بی بی سی نے ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب کو بھی ٹیلی کاسٹ نہیں کیا۔ لیکن یہ ورلڈ کپ بہترین ورلڈ کپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جہاں کھلاڑیوں نے جیت اور ہار پر سجدہ کیا اور اپنی جیت کا جشن اپنی ماؤں سے مقامی لوگوں نے غیر ملکی فٹ بال شائقین کے لیے مفت استنبول ایئرپورٹ کو 2022 کے لیے یورپ کا بہترین ایئرپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ 2022 میں تقریباً 40 ملین مسافروں نے استنبول کے ہوائی اڈے کی سہولت استعمال کی۔ یہ حیرت انگیز پیش رفت ہے کہ استنبول ہوائی اڈا کتنی تیزی سے کووڈ کے بعد پوری صلاحیت پر واپس آیا ہے، جبکہ دنیا کے بیشتر ہوائی اڈے وبائی امراض کے بعد ابھی تک مشکلات پر قابو نہیں پا سکے۔ مسافر ہوائی اڈے پر موجود سہولیات سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں بہترین شاپنگ ایریاز اور ریستوراں ہیں۔ اس کے علاوہ تفریحی سرگرمیاں بھی مہیا کی گئی ہیں۔ 2022 میں ٹرکش ہوائی کمپنی دنیا کی 10 بہترین ہوائی کمپنیوں میں شمار کی گئی۔ استنبول ہوائی اڈے کی انتظامیہ توقع کر رہی ہے کہ 2023 اس سے بھی زیادہ مصروف ہوگا۔ اس سال ہوائی جہازوں کی آمد و رفت میں مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اب ہم ایک مختلف قسم کی کہانی کے لیے دنیا کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں۔ ہم آپ کو ملیشیا سے مختلف قسم کے کافی کے ذائقے دکھائیں۔ 2022 فلسطین کے لیے خوفناک سال رہا، جہاں اسرائیلی نسل پرست حکومت کے ہاتھوں 231 فلسطینی مسلمان مارے گئے۔ 2022 فلسطینیوں کے لیے تقریباً 2 دہائیوں میں سب سے مہلک سال تھا۔ سرخیاں ہمیشہ بے روح ہوتی ہیں اور اعداد و شمار غیر ذاتی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں فلسطینی مشکلات کی شدت کے بارے میں کچھ بصیرت فراہم کر سکتے ہیں۔ ان خاندانوں کے تجربات جو کئی نسلوں سے شدید ناانصافی سے گزرے ہیں، جیسا کہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ 2005 کے بعد 2022 فلسطینیوں کے لیے سب سے زیادہ مہلک سال تھا۔ اسرائیلی فورسز نے کم از کم 146 فلسطینیوں کو شہید کیا، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً دگنا ہے۔ سیو دی چلڈرن آرگنائزیشن نے اعلان کیا کہ 2022 فلسطینی بینک کے بچوں کے لیے سب سے مہلک سال تھا۔ فلسطینی مرکز برائے انسانی حقوق نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے 2022 میں 8 خواتین اور 37 بچوں سمیت 231 فلسطینیوں کو قتل کیا۔ اسرائیلی گھروں کی مسماری سے 823 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی علاقوں میں 8600 سے زیادہ دراندازی کی ہے اور 4800 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں 49 خواتین اور 466 بچے ہیں۔ فلسطینیوں نے اسرائیلی آباد کاروں کے 250 سے زیادہ حملے بھی برداشت کیے ہیں۔
शायद इस साल के सबसे हौलनाक सानिहात रेयान सुलेमान, जना माजिदी ज़करने और शीरीं अबू इकल की मौत थे। ये हलाकतें इसराइल के जुल्म की बेरहमी को जाहिर करती हैं। फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी टीवी सहाफ़ी शीरीं अबू इकल 11 मई 2022 को इसराइली अस्नापर की गोली से हलाक हो गई थी। रेयान सुलेमान की उम्र सिर्फ 7 साल थी जब इसराइली फौजियों ने इसका स्कूल से घर तक पीछा किया और उसे धमकियां दी। छोटा बच्चा इतना खौफजदा था कि उसे दिल का दौरा पड़ा और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। जनीन पर इसराइली फौज के हमले के दौरान 16 साला जना माजिदी ज़करना को अपने घर की छत पर खड़े गोली मारकर हलाक कर दिया गया और साल 2023 में बढ़ते हुए तशद्दुद में इजाफा हुआ है। इसराइल की इंतहाई दाएं बाजू की नई हुकूमत 2023 में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद के इस नए इजाफे की जिम्मेदार है। डिजिटल सोशल मीडिया की दुनिया हैरत अंगेज कहानियों से भरी पड़ी है। अब इस हफ्ते के शॉर्ट क्लिप्स पर एक रिपोर्ट देखें। बरतानिया के शहजादा हैरी ने अफगानिस्तान में अपने फौजी दौरे के दौरान 25 अफगान शहरियों को हलाक करने का एतराफ किया है। बरतानिया के शाही खानदान की ग्लैमरस दुनिया से ताल्लुक रखने वाले शहजादा हैरी, जिन्होंने 2 साल कबल शादी की और शाही खानदान को खैरबाद कहकर अमेरिका मुंतकिल हो गए। वो अमूमन बहुत अच्छी शोहरत का हामिल था और शादी के बाद शाही जिंदगी को अलविदा कह देने से अवाम में उसकी पसंदीदगी बढ़ गई थी। लेकिन इसके इस एतराफ के कि उसने 25 अफगानों को हलाक किया, सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर मजम्मत का बाइस बना। तालिबान रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि शहजादा हैरी पर जंगी जराइम के इल्जाम में अफगानिस्तान में मुकदमा चलाया जाए। ये एतराफ अपनी नई किताब में किया गया है, जिसमें उन्होंने शाही खानदान से मुताल्लिक कई चौंका देने वाले इंकिशाफात किए। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा स्कैंडल ये था कि उसने अफगानिस्तान में अपनी फौज की ड्यूटी के दौरान 25 अफगान शहरियों को कैसे हलाक किया। देखा जाएगा कि क्या जमहूरियत और इंसाफ के खुद दावेदार शहजादा हैरी को इंसाफ के कटहरे में लाते हैं और उन पर 25 अफगान शहरियों के कत्ल का मुकदमा चलाते हैं। बांग्लादेश में जमीन की कमी की वजह से किसानों ने काश्तकारी की एक कदीम तकनीक को बहाल कर दिया है। शदीद मौसमी असरात से मुतासिर होने वाले ममालिक में बांग्लादेश 7वें नंबर पर है। यहाँ जगह की कमी और सैलाबी सूरत हाल की वजह से किसानों को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। इन हालात में बांग्लादेशी किसानों ने बागबानी के एक कदीम तरीके को दोबारा अपना लिया है। ये 200 साल पुरानी एक रिवायती तकनीक है जिसे सैलाब के मनफी असरात से बचाव के लिए अपनाया जाता है। साहिली इलाकों में सतह समंदर के मुसलसल आतार चढ़ाव के बाइस तकरीबन साल भर बागात की जरूरत होती है। इस मकसद के लिए मकामी बांसों के तनों से राफ्ट्स बनाए जाते हैं और फिर इन बेड़ों पर फल और सब्जियां जैसे खीरा, पपीता और टमाटर वगैरह काश्त किए जाते हैं। ये तैरते हुए बागात सैलाब के दिनों में पानी के आतार चढ़ाव से कम मुतासिर होते हैं और पौधे महफूज रहते हैं। हर कटाई के बाद नए बीज बोने के लिए बेड़े को तब्दील कर दिया जाता है। बांग्लादेशी किसान सैलाबी खतरात के पेश नज़र इस तरीके को बहुत मुफीद करार देते हैं। इस अंदाज में फल सब्जियां आगानी से न सिर्फ मकामी मंडियों में तलब और रसद का तवाज़ुन कायम हुआ है, बल्कि किसानों को पहुंचने वाले नुकसान की शरह भी कम हो गई है। बांग्लादेश में बागबानी का ये तरीका तेजी से फरोग पा रहा है और मुल्क के बड़े हिस्से पर सरसब्ज आबी बागात दिखाई देते हैं। हाल ही में बहुत से यहूदी रहबाए सामने आए हैं और सहूनियत और रियासत इस्राइल के खिलाफ एहतजाज किया है। हाल ही में बहुत से यहूदी मजहबी उलमा सहूनी रियासत इस्राइल के खिलाफ एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। उनका कहना है कि इस्राइल यहूदी रियासत नहीं है और उसका क़याम हमारी मजहबी किताबों और अकायद की तालीम के खिलाफ है। ये यहूदी मजहबी उलमा यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए। बाज़ मकामात पर मकामी पुलिस की जानिब से इन मुजाहिरों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश भी की गई। ये यहूदी मजहबी उलमा अब खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत कर रहे हैं। इनके नज़दीक यहूदियत और सहूनियत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सहूनी रियासत इसराइल पर तनकीद का मतलब यहूदियत मुखालिफ नहीं है।
उन्होंने फ़लस्तीनियों पर वहशियाना जुल्म और सितम पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया है और इस अमल की भरपूर मजम्मत की है। हमारे पास इस एपिसोड के लिए यही वक्त है। इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ते डिजिटल मुस्लिम वर्ल्ड की मजीद कहानियां लेकर आएंगे। आज हम तुर्की में अलविदा कहते हैं। होश चाकलिन, अस्सलामु अलैकुम। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد